Okay, so Bismillah करते हैं. So today we are going to start the topic of MySQL database, and it is a relational database, and there are various other important and popular databases like Oracle, Microsoft SQL Server, and DB2, and similarly there are Teradata. These are various popular databases. These are essentially the relational relational databases. So MySQL is again one of the database which is a popular combination with PHP. And once we install the sham, then it automatically starts. So these are some of the topics which are related to the database. Uh, some introduction, then connecting through command line interface. Then there are various important works which can be done with PHP, with my SQL. So the first thing that you should know that once we create dynamic pages, then we are required to use some database. So therefore, for creating dynamic pages, the role of MySQL is very important. So let's see the first topic. MySQL is the most popular database used with PHP, and MySQL is a database system used on web. Then MySQL is database system that runs on server. MySQL is ideal for both small and large applications. MySQL is fast, reliable, and easy to use. And MySQL uses standard SQL. SQL stands for Structured Query Language. So it is another language which is used in the databases. Then MySQL compiles on number of platforms, Windows, Linux, Unix, etc. MySQL is free to download and use. MySQL is developed and distributed by Oracle Corporation, and MySQL is named after co-founder Monty Vidensi's daughter, My. Okay, the data in the MySQL database is stored in tables. A table is, and what is table? Table is a collection of related data that it consists of columns and rows. And databases are used for storing information categorically. A company may have database with the following tables, for example, employees, products, customer, order. तो किसी भी कंपनी की जो डेटाबेस है उसमें typically we may find many tables, but these are typical 4 tables which are most of the time there. That is employee, product, customer, or and order. So first of all, let me give you little demos. First of all, you should know that sham control panel. Once it is installed, you will find first of all you will find Apache server and MySQL server. As indicated in the previous lecture, that my Apache is a web server. On the other hand, MySQL is a database server. We can stop and start the servers from this control panel. Let me start Apache first.
and then MySQL Server. By default, it uses the port 3306. So now both servers are on. It means that now we can access MySQL database. So database, as I indicated earlier, that this is sham folder where we installed sham, and here you will find MySQL. This is MySQL server. So these are the installations of MySQL server. So you can see that MySQL server is a subfolder of sham folder, and there is a bin folder. If you open a bin folder here, you will find MySQL exe. So basically, if we want to make use of manipulate, if we want to manipulate the MySQL database through command line interface, we are required to make use of this MySQL exe. How we use command line interface? We write CMD. So a command prompt is available. I click it and now it has opened. So you can see that currently my default folder is C users Farooq Azam, but it is a different folder. Here PHP, this PHP exists in F sham MySQL bin. I may create, I can go this folder. For example, if I write CD means change directory, and F sham MySQL bin. If I'll enter, and I write F colon, so I'll shift to the F directory, and within F directory you can see that now my current folder is sham MySQL bin folder. Now I am in a bin folder. Now here if I press a directory command, I'll get the list of all the subfolders and files. So here you can see these are the files. There are two directories. So there are various DLL spray there, then various exe files, and MySQL exe is also there. So we have to make use of this MySQL exe if we want to make it accessible. अब अगर मुझे फिर MySQL exe को पाथ में डालना पड़ता है, ये जो MySQL exe है, अगर मैं पाथ में डालूंगा then I am not required to bring come to this folder. इस जगह पे मुझे आना नहीं पड़ेगा, मैं किसी भी फोल्डर में होऊंगा तो मुझे इस फोल्डर में माई एक्जी विजिबल होगी. कब विजिबल होगी? जब मैंने पाथ वेरिएबल सेट किया होगा. पाथ वेरिएबल सेट करने के लिए वी राइट पाथ हियर and environment variables are opened. There is a window of environment variables. Here you can see environment variables, and within environment variable there is a path, and I can edit the path, and here you will find various links. तो path का फ़ायदा यही है कि हमें जितने भी हैं फोल्डर स्पेसिफाई किए हुए हैं, हम किसी भी जगह पे अगर होंगे, हमें उस फोल्डर में अगर कोई फाइल पड़ी है तो हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. So here you can see I have added fsham php, and I have to add ini as well. php
bin। तो ये bin वैसे डली हुई है, fsham mysql bin डली हुई है ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ ऑलरेडी इन द पाथ। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ अपना पाथ, तो इफ़ आई सिंपली राइट अ पाथ स्टेटमेंट हेयर, आई विल गेट द कंटेंट ऑफ पाथ वेरिएबल। तो जितने भी वो वहाँ पे पाथ नज़र आ रहे थे वो हमें सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पाथ इज इक्वल टू से शुरू हो रहा है, ये पे सारे पाथ डले हुए हैं। यहाँ पे आपको fsham mysql fsham php नज़र आ रहा है आपको। तो इसी तरह बिन भी होगा, भी मिल नहीं रहा, वो भी नजर आएगा। तो वी कैन आइदर वी कैन गो टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और वी कैन वेरीफाई आवर पाथ हेयर। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं कमांड लाइन से। हम अब बात करते हैं अपनी उसकी कि कैसे हमने इसको अब माई एसक्यूएल को एक्सेस कैसे करना है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Query is a question or a request. We can carry a database. पहले मैं आपको कनेक्शन करना सिखाऊं, फिर ये बात करते हैं आगे। How we connect through CLI. CLI stands for Command Line Interface. PHP and later can work with MySQL database using MySQL I extension or PDO, PHP data objects. So PDO, we will make use of PDO. तो अब ये देखें कमांड लाइन मैंने भी खोली है, इस पर मैं कैसे इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड माई एसक्यूएल पाथ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल fsham mysql bin mysql.exe ये डालेंगे। देन बल्कि हमें exe फाइल नहीं देनी, सिर्फ फोल्डर का नाम देना है, उसमें जो भी फाइल होगी हम उठा लेंगे, फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करना है हमें। दिस इज द वेरिएबल वी नीड टू सेट। Then we can open window by cmd command. Then we make use this syntax. अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL, ये वही MySQL exe है, स्पेस डबल डैश होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट स्पेस डबल डैश यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम जो भी होगा स्पेस डबल डैश पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड and then name of the database. MyDB is name of database. Alternately हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन है, MySQL -h, h stands for host, स्पेस इज इक्वल टू के बजाय स्पेस डालेंगे यहाँ पे, एंड लोकल होस्ट द सेम वन, एंड इंस्टेड ऑफ डबल डैश यूजर वी विल राइट -u, इज इक्वल टू की जगह स्पेस आ जाएगा, माई नेम की जगह माई नेम, यूजर नेम जो भी है। इसी तरह डबल डैश पासवर्ड की जगह हम लिखेंगे डैश p, और इज इक्वल टू की जगह जहाँ स्पेस आएगी, नहीं भी आएगी तो फिर भी उठा लेगा ये। तो उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है, देन आफ्टर स्पेस यू हैव टू ऐड नेम ऑफ द डेटाबेस। नाउ इफ यू हैव डिफॉल्ट सेटिंग देन फॉलोइंग विल वर्क सिंस पासवर्ड फॉर यूजर रूट इज ब्लैंक। इसके अंदर एक यूजर रूट होता है जो बाय डिफॉल्ट बन जाता है, विच इज द मोस्ट पावरफुल यूजर। उसको हर तरह की डेटाबेस के पूरे राइट्स होते हैं, डेटाबेस डिलीट भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो रूट इज द मोस्ट पावरफुल यूजर इन MySQL, और उसका जो बाय डिफॉल्ट उसका पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो अगर यूजर नेम रूट हो और पासवर्ड ब्लैंक हो, तुम्हारी जो शॉर्ट स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी, MySQL स्पेस -h स्पेस लोकल होस्ट लोकल सर्वर, क्योंकि शॉर्ट इसलिए लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, -h रूट, एंड देयर इज नो पासवर्ड। फिलहाल हमने आगे डेटाबेस का नाम भी नहीं डाला, डेटाबेस का नाम भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो बाद में मांगेगा आपसे। लेट मी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट।
मैं लिखता हूँ MySQL -h localhost -u username root. There is no password, so I'll not use other commands. So you can see what is written here. Welcome to MariaDB monitor. Command end with semicolon, etc. Your MariaDB connection is ID is 10. सर्वर का वर्जन आपका 10.4.19 है. एंड फॉर हेल्प टाइप हेल्प और \h फॉर हेल्प, टाइप \c फॉर टू क्लियर. तो \c पहले तो हम डालते हैं. \c ओके. अभी ये उसके कंसोल में आ गया है. हम आगे अब हम ये करते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द इसका जो एडमिन पैनल है वो हम खोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी खोला था लास्ट लेक्चर में. इसका आई जस्ट सिंपली राइट लोकलहोस्ट लिखूंगा तो ये एडमिन पैनल खुल जाएगा. इसका ये एडमिन पैनल खुल गया. इसके अंदर अगर मैंने डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है तो आई प्रेस php my admin. तो php my admin अगर मैं करूँगा तो ये मुझे डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं जो अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं. कुछ डेटाबेसेस मैंने नई इंस्टॉल किए हैं. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ एंड क्लासिक मॉडल, दीज डेटाबेसेस मैंने नेट से डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल किया हुआ है. बाकी डेटाबेसेस आपको मिलेंगी इसके अंदर. अच्छा, इसमें ये डेटाबेस चीज़ हैं बहुत सारी. जब भी मैंने किसी डेटाबेस को यूज़ करना होता है मैं लिखता हूँ जो कमांड है मेरी. ये कमांड यहाँ भी दे सकते हैं हम. यूज़, मैं भी क्लासिक मॉडल को यूज़ करना चाहता हूँ. लेकिन मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ. पहले यहाँ देते हैं. पहले मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस. ठीक है, जस्ट टू सी के डेटाबेसेस हैं कौन कौन सी इसमें. शो डेटाबेसेस स्पेलिंग गलत है मेरे. शो डेटाबेसेस. सो ये मैंने, मेरे स्पेलिंग गलत थे. अब ये मैंने कमांड दिया शो डेटाबेसेस. ये बता रहा है कि इस वक्त MySQL सर्वर में काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं. क्लासिक मॉडल्स है, एम्प्लॉई है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MyDBO. तो यही जो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है एडमिन पैनल में, वो यहाँ भी डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं आपको. देन आई मे सेलेक्ट एनी डेटाबेस. किसी डेटाबेस को अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैंने लिखूंगा मैं यूज़ डेटाबेस. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये एम्प्लॉयज़ डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ. तो मैं लिख रहा हूँ यूज़ एम्प्लॉयज़. सो डेटाबेस चेंज्ड लिखा हुआ आ गया. तो अब मेरी जो करंट डेटाबेस है वो बन गई है एम्प्लॉयज़. अब अगर मैं एम्प्लॉयज़ डेटाबेस को खोलूँ यहाँ पे तो ये मुझे बहुत सारे टेबल नज़र आएंगे. डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई वगैरह वगैरह वगैरह. मेरे ख्याल में ये कमांड भी काम करती है. लेट मी ट्राई इट. मैंने ट्राई नहीं की पहले. शो टेबल्स. अब ये एम्प्लॉय डेटाबेस के टेबल्स शो कर रहा है. करंट, डिपार्टमेंट नेम, जो टेबल आपको यहाँ पे नज़र आएंगे वही टेबल आपको
वही टेबल आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये करंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये बेसिकली व्यू है। व्यू इज बेसिकली अ डायनेमिक टेबल। ये जो 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 फिजिकल, ये फिजिकल टेबल हैं जो हमारे ऊपर हैं, और ये दो डायनेमिक टेबल हैं। जब हम टेबल्स कहते हैं तो हमें व्यूज और टेबल दोनों शो कर रहा होता है। ये सारे व्यूज टेबल नजर आ रहा है, टाइटल है यहाँ पे, यहाँ भी टाइटल नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं टाइटल्स को देखना चाहता हूँ। अगर टाइटल्स को मैं खोलूँ यहाँ पे, तो हमें कितने कॉलम मिलेंगे टेबल के अंदर? तो टेबल के अंदर हमें नजर आ रहे हैं 1 2 3 और 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। लेट मी, अब मैंने डाटा देखना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब टेबल का नाम आएगा टाइटल्स। टाइटल्स, ये टाइटल डेटाबेस के अंदर ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है। कंट्रोल सी करके मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। बहुत सारी इसमें रोज हैं टाइटल टेबल के अंदर, तो इसमें देखेंगे तो आपको दो कॉलम है इसके अंदर, बल्कि 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉय ने नंबर, टाइटल, फ्रॉम डेट एंड टू डेट, तो ये हमें 4 इसके अंदर कॉलम नजर आ रहे हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है जी, तो ये मैं आपको ब्रीफ सा डेमो दे दिया कि कमांड लाइन इंटरफेस से कैसे टेबल एक्सेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। नाउ आई कम टू द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो की अगर मैं प्लगइन्स पहले दिखाता हूँ आपको, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन है, कोड रनर, माई एसक्यूएल, नोड जेएस, ओपन ब्राउजर प्रीव्यू एंड PHP माई डिबग। और इसमें मैंने ये माई एसक्यूएल क्लाइंट मैंने इंस्टॉल किया है। माई एसक्यूएल, ये क्लाइंट क्या बताता है? इट इज़ अ डेटाबेस क्लाइंट फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। इट सपोर्ट्स डेटाबेसेस MySQL, MariaDB, Microsoft SQL सर्वर, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, बहुत सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। अब क्योंकि हमने MySQL इंस्टॉल की हुई है, तो हम MySQL को मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ से भी विद। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वी कैन मैनिपुलेट डेटाबेसेस फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। तो अभी हम जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये यहाँ पे एक सिंबल बन जाता है एक्सप्लोरर। मैं इसे क्लिक करूँगा तो मुझे जितनी डेटाबेसेस मुझे कमांड पैनल में नज़र आ रही हो, यहाँ भी नज़र आएंगी। तो ये आपको डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं, और यही डेटाबेसेस आपको यहाँ भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। क्लासिक मॉडल, एम्प्लॉय, ये सारी डेटाबेसेस यहाँ भी नज़र आनी शुरू हो गई मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयज़ को खोलता हूँ, देन आई विल सी टेबल्स एंड व्यूज़। ये टेबल नज़र आ रहे हैं, मुझे बता रहा है कि इस टेबल में कितना डाटा पड़ा हुआ है। इस टेबल में 9 रोज़ हैं, ये टेबल बड़ा है, बाकी टेबल बड़े हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, ये सब व्यूज़ नज़र आ रहे हैं हमें। और फिर इसके अंदर कोई प्रोसीजर होंगे या फंक्शन होंगे, वो नज़र आएंगे हमें, जो नहीं बने हुए फिलहाल। एंड सिमिलरली देयर आर अदर डेटाबेसेस एज वेल। तो हम जो कमांड विंडो है हमारी, ये वाली जो कमांड विंडो है, इस विंडो को हम MySQL सर्वर में भी खोल सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं जाता हूँ टर्मिनल पे, और पहले मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ एक दफ़ा।
ये कमांड विंडो हम इसके अंदर भी खोल सकते हैं, जो हमने बाहर खोली है, एक्सटर्नल खोली है, इस विंडो को हम अंदर भी खोल सकते हैं। ये भी कमांड विंडो खुली हुई है, लेकिन ये पावर शेल की विंडो है। पावर शेल से भी काम हो सकता है, लेकिन कमांड विंडो से भी कर सकते हैं काम। ये कमांड विंडो है, और कमांड विंडो में अगर मैं लिखता हूँ द सेम स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ये लिखी थी मैंने, तो यही मारिया डीबी प्रॉम्प्ट शुरू हो गई है यहाँ भी, जो यहाँ शुरू हो गई थी। ये एसक्यूएल की इन्वायरमेंट खुल जाती है, तो यहाँ भी शुरू हो गई, तो वही काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन यूज सम डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टेस्ट, टेस्ट को छोड़ दें, माई डी बी पी डी ओ, यूज माई डी बी पी डी ओ। डेटाबेस चेंज हो गई है। अब मैं इसमें ओके, सो नाउ आई हैव सेलेक्टेड अ डेटाबेस माई डी बी ओ पी डी ओ। अब मैं फॉर एग्जांपल देखता हूँ कि इसमें टेबल्स कितने हैं। शो टेबल्स, तो माई डी बी ओ में सिर्फ एक ही टेबल है, माई गेस्ट के नाम से। अगर मैं इसको खोलूँगा यहाँ से, तो मुझे एक ही टेबल नज़र आ रहा है माई गेस्ट के नाम से। अच्छा, इन टेबल का डेटा अगर देखना हो, तो ये इस टेबल का डेटा नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं किसी भी डेटाबेस का टेबल का डेटा देख सकता हूँ। ये मैंने एम्प्लॉय खोला, टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर डिपार्टमेंट का टेबल का डेटा देखने में क्लिक करूँगा डिपार्टमेंट पे, तो ये मुझे डिपार्टमेंट टेबल का डेटा नज़र आना शुरू हो गया। ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ का डेटा है, सब डेटा नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं इस डेटा को, यहाँ पे कोई रो डिलीट करनी है डिलीट कर सकता हूँ, रोज ऐड कर सकता हूँ प्लस से। आई कैन इंसर्ट अ रो। यही काम मैं इधर से भी कर सकता हूँ, एडमिन पैनल से। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय खोलता हूँ, टेबल खोलता हूँ मैं डिपार्टमेंट्स का, वंस आई क्लिक, तो ये टेबल राइट साइड पे इसका डेटा खुल जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट टेबल का डेटा। इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम दो कॉलम हैं। इसी तरह मैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का डेटा खोलूँगा, तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा मुझे। तो just to conclude that we can manipulate databases through command line interface, and we can manipulate the databases through the graphical interface as well। और आप PHP माई एडमिन में भी ये सारा काम कर सकते हैं। और अगर आपने PHP का क्लाइंट इंस्टॉल किया है, तो PHP क्लाइंट के ज़रिए भी डेटाबेस विजुअल स्टूडियो कोड में मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें मुझे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। जी कोई बोलें। कैन यू हियर मी?
मेरी आवाज आ रही है आपको अलीना? Yes, sir. Yes, Sorry. sir. Sir, you are audible. स्क्रीन भी शेयर्ड है? जी Yes. सर. अच्छा, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने भी डेमो से दिया आपको? क्लियर है? यस Yes, sir. सर. चलिए अभी सॉल्व करके आपने इसको साथ थोड़ा सा हैंड ऑन करना है। छोटी सी मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट, ताकि इसको थोड़ा सा आप यूज करें, इंस्टॉलेशन वगैरह करें। ओके, सो Sir, आप muted. Sir, आप muted है. सर आपका माइक म्यूट है। ओके, थैंक यू। So we can make use of two MySQLi or PDO. Both have their own advantages. PDO will work in 12 different database systems, whereas MySQLi will only work with MySQL database. So if you want to switch your project to use another database, PDO makes process easy. You can only have to change the connection string and few queries. With MySQLi, you will use or rewrite the entire code, queries included. अच्छा, मकसद ये है कि अगर आप PDO को यूज़ करेंगे तो PDO जितनी भी दूसरी डेटाबेसेस हैं उनमें उनके साथ भी यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कल को डिसाइड करते हैं कि जी मैंने MySQL की जगह SQL सर्वर यूज़ करना है, तो आपको अगर अपने PDO बेस प्रोग्रामिंग की हुई होगी तो फिर आपको बैकएंड की डेटाबेस आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में डेटाबेस आपको चेंज करनी पड़ती है तो।
लेकिन अगर आप MySQL यूज़ करेंगे तो फिर MySQL I जो है वो सिर्फ और सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ यूज़ होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा रीकोडिंग करनी पड़ जाएगी। Both are object oriented, but MySQL offers procedural API. Both support prepared statements. Prepared statements protect from SQL injection and are very important for web application security. SQL इंजेक्शन का तरीका ये होता है कि आप URL के जरिए SQL का कोड इंजेक्ट कर देते हैं एज अ क्लाइंट, जबकि इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि SQL इंजेक्शन से डेटाबेसेस को हैक किया जा सकता है। तो अगर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज़ करें तो फिर SQL इंजेक्शन अटैक नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ एडवांटेज, और दोनों प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमें बनाने की इजाज़त देती हैं। अच्छा, PDO इसका जैसे ही हम शैम्प इंस्टॉल करते हैं PDO इंस्टॉल हो जाता है खुद ब खुद ही, अलग से ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी क्रिएट अ कनेक्शन प्रोग्रामेटिकली, पहला चीज़ आ गई। जैसे अभी मैंने आपको डेमो दिया कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का, प्रोग्रामेटिकली कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो जनरली हमने जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, मैं आपको जो PDO बेस्ड एग्जांपल सारी दिखाऊंगा क्योंकि PDO ज़्यादा वर्सटाइल है, तो जो भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा PDO बेस्ड एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो ये एक छोटा सा कोड है, PHP का फाइल है जिसमें हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं MySQL डेटाबेस के साथ। सो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग 3 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल में हम सर्वर का नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट रख दिया हमने, दूसरे में यूज़र नेम रखेंगे, फॉर एग्जांपल रूट हो सकता है नाम। देन तीसरा वेरिएबल हमने बना लिया पासवर्ड का। पासवर्ड हमारा ब्लैंक है फिलहाल, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक चल रहा है। बहरहाल ये स्टैंडर्ड है कि हम 3 वेरिएबल यूज़ बना लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है न्यू PDO से क्या होगा कि PDO का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और तीनों वेरिएबल हम इसको पास कर देंगे। इसमें हम लिख रहे हैं MySQL होस्ट इज इक्वल टू यूज़र नेम, ये सर्वर नेम, सेमी कॉलन, DB नेम इज इक्वल टू MyDB, डेटाबेस भी होता है क्या, किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है हमने, देन यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम 4 वेरिएबल पास कर रहे हैं इसको, और जैसे ही 4 वेरिएबल पास करेंगे डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, एंड यू विल गेट द हैंडल ऑफ द डेटाबेस इन कॉन ऑब्जेक्ट, कॉन वेरिएबल। इसको आप कनेक्शन कह लें, शॉर्ट फॉर्म हमने कॉन लिख दिया है। कनेक्शन वेरिएबल में आपका डेटाबेस का हैंडल आपको मिल जाएगा जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने कोई अगर एरर आ जाती हैं तो एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए एक स्टेटमेंट ये वाली लिख देते हैं हम, कनेक्शन सेट एट्रीब्यूट PDO एट्रीब्यूट एरर मोड PDO एरर मोड एक्सेप्शंस। तो इसलिए अगर कोई एरर आएगी डेटा कनेक्ट करते हुए तो हमें एक मुनासिब सा जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा कि जी क्या वजह, क्यों डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहा या कोई और मसला है। तो फिर इसमें ट्राई कैच ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट है। ट्राई कैच ब्लॉक का पता है आपने, डेटा C में यूज होता है ट्राई कैच ब्लॉक, सुना हुआ नाम अलीना? नो सर। सुना हुआ नाम ये ट्राई कैच ब्लॉक? यस क्या सर, होता है? सुना हुआ है। क्या यस होता है? सर, एक्सेप्शन जो आती है उसको हैंडल करते हैं इससे। हाँ, गुड। ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होता है। तो जनरली जब डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है तो वी कीप इट इन अ ट्राई ब्लॉक, ताकि अगर कोई एरर आता है तो वो कैश ब्लॉक में उसे हम कैप्चर करके और डिस्प्ले कर दें, कोई भी अपना एरर मैसेज दे दें। तो एरर मैसेज एक मुनासिब अच्छा एरर मैसेज जिससे आपको अंदाज़ा हो सके वो आ जाता है।
तो अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता तो स्ट्रेट अवे इट विल जंप टू द कैश ब्लॉक, और कैश ब्लॉक में ये जो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इको कनेक्शन फेल्ड, और साथ ही एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि क्या मसला है। तो ये कोड है डेटाबेस को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं आपको यही वाला कोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जस्ट टू शो यू कि डेटाबेस कनेक्ट हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ, इसका पाथ कॉपी करता हूँ, और लेट मी क्रिएट अ न्यू विंडो। इसमें पाथ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास, मैसेज कनेक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए मैंने सर्वर नेम क्या डाला है, लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट। अच्छा, ये मैंने एडमिन पैनल से आपको दिखाता हूँ। यूज़र अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट में से मैं कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये रूट यूज़र यूज़ कर रहा हूँ। लोकल होस्ट इसका होस्ट नेम यूज़र लोकल होस्ट है, पासवर्ड कोई नहीं है इसका, प्रिविलेज इसके पास सारी हैं, और तो मैं ये यूज़र यूज़ करूँगा रूट लोकल होस्ट विदाउट पासवर्ड। तो ये मैंने बताया कि जी ये लोकल होस्ट है। अच्छा, और उसके बाद मैंने डेटाबेस कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, डेटाबेस एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ डेटाबेस यहाँ पड़ी हुई है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया ये एम्प्लॉयज़ डेटाबेस पड़ी हुई है। ये डेटाबेस को के साथ मैं कनेक्ट हो गया हूँ इस कोड के साथ। ओके, connection will be closed automatically when script ends. To close the connection before, use the following. For example, connection is equal to null. तो अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने कनेक्शन डाला है, इसने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने कनेक्शन अगर क्लोज करना है तो मैं ये वाली स्टेटमेंट दे सकता हूँ, कनेक्शन नल, तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा मेरा डेटाबेस के साथ। Now, how can we create a database? You will need a special create privileges to create or delete MySQL. इस वक्त मैं root का यूज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके पास ये privileges हैं। So this is a typical statement to create a database. तो मैं अच्छा, इसमें आप ये देखें कि ये हम एक डेटाबेस क्रिएट करने लगे हैं, और ये स्टेटमेंट वही है। पहले मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ये दो स्टेटमेंट जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगी। उसके बाद मैंने ये वाले एसक्यूएल की कमांड एग्जीक्यूट करनी है। कमांड क्या है,
क्रिएट डेटाबेस माई डीबीओ पीडीओ, यानी कि मैं माई डीबी पीडीओ डेटाबेस से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो क्रिएट करके तो एसक्यूएल वेरिएबल में ये स्ट्रिंग आ जाएगी। तो जब मैं करूँगा कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट और एसक्यूएल पास करूँगा तो ये स्टेटमेंट इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा, क्रिएट डेटाबेस माई डीबीओ। ये स्टेटमेंट मैं अलग से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये माई डीबीओ पीडीओ है जो मैंने क्रिएट की हुई है। लेट मी ड्रॉप इट। ड्रॉप का मतलब है कि डिलीट। यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट टेबल, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल। अच्छा, ये टेबल ड्रॉप कर रहे हैं। डेटाबेस भी हम यहाँ से अच्छा, पहले हम टेबल ड्रॉप कर लेते हैं। पहले टेबल इसका ड्रॉप करते हैं, यानी कि टेबल डिलीट करने लगे हम। टेबल मैंने ड्रॉप कर दिया जो इसके अंदर बना हुआ था। ये नीचे कमांड भी आ गई, ड्रॉप टेबल माई गेस। अच्छा, अब एक कमांड यहाँ पे होनी चाहिए टेबल डेटाबेस डिलीट करने की। नज़र नहीं आ रही मुझे, कहाँ गई है। चले, हम इसको अभी नज़र नहीं आ रही मुझे, कमांड यहीं पे होनी चाहिए थी। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस ने ये भी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे ख्याल में मुझे एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, क्योंकि डेटाबेस बनी हुई है ये वाली। या तो पहले मैं टेबल को लेट मी ट्राई, अगर ये काम कर जाए। और माई डीबी पीडीओ। इसका सिंटैक्स कुछ और है, इसको सर्च कर लेते हैं। डिलीट डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। ड्रॉप डेटाबेस नेम, मैंने क्या लिखा है। अच्छा, डेटाबेस नहीं लिखा था मैंने। ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी पीडीओ। तो क्यूरी ओके। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरी डेटाबेस गायब हो गई है यहाँ से। एडमिन पैनल देख लेते हैं। एडमिन पैनल मेरा कहाँ था, कौन सी जगह पे रखा था मैंने।
ये यहाँ से आप देखेंगे कि माई डी बी पी डी ओ डेटाबेस डिलीट हो गया। नाउ आई कैन क्रिएट एग्जीक्यूट दिस कमांड। इससे दोबारा एक बार क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस माई डी बी ओ पी डी ओ। तो ये इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट है, क्रिएट डेटाबेस माई डी बी पी डी ओ। ये इसको मैंने स्ट्रिंग को सेव किया एसक्यूएल के अंदर और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। तो इसको लेट मी execute it in a debug mode. मैं इसे रन करता हूँ। क्या हुआ है? एग्जीक्यूट तो नहीं हो गया, ब्रेक पॉइंट लगाना भूल गया मैं। ये एग्जीक्यूट हो गया है, डेटाबेस क्रिएट हो गई है, लेकिन मैं इसको डीबग मोड में चलाना चाह रहा हूँ। लेट मी ड्रॉप इट अगेन। ये ड्रॉप कर दिया मैंने। मैं इसको डीबग मोड में रन करता हूँ। ये मेरे पास कंट्रोल आ गया यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे, पहले ब्रेक पॉइंट पे, और अभी कनेक्शन वेरिएबल में कुछ नहीं है। तो आपको ये मैंने एक वेरिएबल में लेकर आया हूँ पूरी स्टेटमेंट। पीडीओ का ऑब्जेक्ट यूजर नेम रूट, सर्वर नेम लोकल होस्ट, पासवर्ड नील, ये 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं। यहाँ से आगे चलते हैं और ये यहाँ पे ये एसक्यूएल में कुछ नहीं है अभी। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एसक्यूएल वेरिएबल में ये आ गया क्रिएट डेटाबेस माई DBPDO। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख दूँगा तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं प्रोग्रामेटिकली करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने एसक्यूएल की स्टेटमेंट ये वेरिएबल में डाल दी स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करूँगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे मैं कनेक्शन को दोबारा क्लोज भी कर रहा हूँ डेटाबेस क्रिएट करके। So this is how you can manipulate it in a debug console as well. ये मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाई है आपको। इसके बाद हम टेबल क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट ये एसक्यूएल लिखी हुई है, क्रिएट टेबल माई गेस्ट। टेबल का नाम होगा माई गेस्ट, उसका पहला जो कॉलम होगा उसका नाम होगा आईडी, और ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। इसमें जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, हमें डेटा डालना नहीं होगा, ये खुद ब खुद डेटा इसमें डलेगा। सीरियल नंबर डालेंगे इसके अंदर। फिर दूसरा कॉलम है फर्स्ट नेम का, जिसका डेटा टाइप है varchar। varchar समझे कि स्ट्रिंग है। varchar 30 का मतलब है कि 30 स्पेस की स्ट्रिंग है एक तरह की। और नॉट नल का मतलब है कि हम इसको नल नहीं छोड़ सकते, अगर जब हम डेटा डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा इसमें। इसी तरह तीसरा कॉलम है लास्ट नेम, इसकी भी डेटा टाइप varchar है। एंड नॉट नल का मतलब ये है कि लास्ट नेम आपको
एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, लास्ट नेम डालना पड़ेगा अगर आपने कोई रो इंसर्ट करनी है तो। तीसरा वेरिएबल है varchar 50 विच इज़ ऑप्शनल, और चौथा वेरिएबल है रजिस्टर डेट, ये भी सिस्टम से डेट टाइम डाल देगा। ये स्टेटमेंट लिखने से होता है कि सिस्टम से वो डेट टाइम डाल देता है। तो सबसे पहले तो हमने टेबल क्रिएट करना होगा, फिर उसमें डेटा डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट है टेबल क्रिएट करने की। ये टेबल क्रिएट करने का कोड है, ये पूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट है, पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी। ये स्ट्रिंग को मैं वेरिएबल एसक्यूएल में सेव करूंगा, देन आई विल एग्जीक्यूट दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट विथ कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट। तो ये टेबल माई गेस क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा इस तरह। अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं डला हुआ, ये टेबल ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मैंने रन किया है इसमें, और ये एसक्यूएल तैयार होगी यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट। तो आप अगर एसक्यूएल में देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा वो स्ट्रिंग जो बनी हुई है एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर आ गई है, टेबल क्रिएट करने वाली स्टेटमेंट। अब जब मैं करूँगा यहाँ पे कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये लिखा हुआ आ गया टेबल माई गेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ गया, और अब ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो याद रखें जब भी डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आप डेटाबेस को मैनिपुलेट करके, और फिर एंड पे लाजमी याद से कनेक्शन क्लोज भी करना होता है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए हमेशा कनेक्शन एंड पे क्लोज करना चाहिए। तो कनेक्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। एनी क्यूरी ऑन दिस डेमो? अच्छा, अगर मैं टेबल देखूंगा तो माय रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये माई डी बी और डेटाबेस है, इसके अंदर अब ये एक टेबल नज़र आ गया मुझे, माई गेस्ट टेबल। अभी इस टेबल में डेटा कोई नहीं है, लेकिन टेबल क्रिएट हो गया, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट। अभी डेटा कोई नहीं है इसके अंदर। So this is a demo of creating a table with PHP code. Now we can ये मैंने आपको डेमो दे दी है। Now let's see how can we insert the data. अब insert data का डेमो देखते हैं। After database and table we have been created, we can start adding data in them. Here are some syntax rules. The SQL query must be quoted in PHP. String value या जो भी SQL की क्यूरी है वो मैं उसको डबल कोटेशन के अंदर रखना होगा। इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू जो होगी उसको भी कोट करना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू को कोटेशन में नहीं डालना, नल को कोट में नहीं डालना डेटा इंसर्ट करते हुए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। So this is a statement for inserting data into the table. सबसे पहले हम लिखते हैं insert into, then we give name of the table, then we give name of the columns जिन कॉलम में हम डेटा डालना चाहते हैं। अगर कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे तो कॉलम 1 की वैल्यू डालेंगे,
कॉलम 1 में जो डालना है वो लिखेंगे, फिर जो कॉलम 2 में डालना है, जो कॉलम 3 में डालना है। तो जो ऑर्डर आप यहाँ पे रखेंगे ऊपर, कॉलम का नाम वही आपने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। तो उसी ऑर्डर में पहली वैल्यू कॉलम 1 में जाएगी, दूसरी 2 में जाएगी, 3 जाएगी। अगर यहाँ कर देते हैं आप कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, तो जो ऑर्डर यहाँ पे रखेंगे वही ऑर्डर वैल्यूज़ के लिए रखना है, ताकि जिस कॉलम में आप डालना चाहते हैं वैल्यूज़ वहीं जाए। ये ऑर्डर का सीक्वेंस होना ज़रूरी नहीं है। कॉलम 3 पहले भी लिख सकते हैं आप, 3 to 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी 3 to 1 करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन हियर? ओके, अब इसकी भी डेमो देख लेते हैं। ये डेटा इंसर्ट का कोड है। सबसे पहले हमने वही सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, माई DBO, DBPDO, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, उस टेबल में हमने डेटा इंसर्ट करना है। तो ये डेटाबेस का नाम डाल दिया हमने। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया PDO का, फिर वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो डाल दी, एरर हैंडलिंग की। अब ये हमारी SQL है, ये पूरी SQL स्टेटमेंट है। ये SQL स्टेटमेंट डबल कोड के अंदर डली हुई है। इंसर्ट इनटू माई गेस्ट, जो कि टेबल का नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वैल्यूज़ क्या डालेंगे, जॉन फर्स्ट नेम, डो लास्ट नेम होगा, और ईमेल होगी ये वाली। जब ये मेरा SQL का वेरिएबल तैयार हो जाएगा, आई पुट इट हेयर कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट SQL, तो ये SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड यू विल फाइंड इट विल बी रिटर्न न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको भी डीबग मोड में रन कर लेते हैं। ये मैंने किया डीबग मोड में, तो आपको ये SQL की स्टेटमेंट है जो तैयार हुई है। इंसर्ट इनटू माय गेस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और जो वैल्यूज़ डालनी है हमने। अब हम ये एग्जीक्यूट हो गई कमांड, और ये न्यू लिखा हुआ आ गया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये आखिर में हम कनेक्शन क्लोज कर देंगे। अब अगर हम इसको देखते हैं जाके कि वाकई रो इंसर्ट भी हुई है कि नहीं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पहली रो इंसर्ट हो गई है। हमने 3 वैल्यूज़ डाली हैं। एक हमने डाला फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, और ईमेल ये वाली। जबकि आप ये देखें आईडी में, क्योंकि पहला रिकॉर्ड था तो ऑटोमेटिकली उसने नंबर 1 डाल दिया है, और रजिस्ट्रेशन डेट में ऑटोमेटिकली उसने करंट डेट टाइम डाल दिया। तो दिस इज हाउ वी इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल्स। एनी क्वेश्चन ऑन दिस डेमो? ओके, डेटा डाल दिया। अब कई दफ़ा हमें जब डेटा डालते हैं तो मैं कई दफ़ा जो लास्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया होता है ना, वो हमें चाहिए होता है, क्योंकि आखिरी रिकॉर्ड को हमने मैनिपुलेट करना होता है। तो हम लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड को कैसे फेच कर सकते हैं? वो अभी इसको आपको मैं बताता हूँ। लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड, इसका मैं देखता हूँ मैंने इसका डेमो बनाया हुआ कि नहीं। लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड DBO, इसमें अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मारिया खान एग्जाम्पल फला फला, ठीक है। चलें अभी नाम चेंज करते हैं, लीना का नाम रखते हैं, स्टूडेंट हमारी।
अलीना खान, ठीक है, पता नहीं खान है कि नहीं, चलें, हाइपोथेटिकल नेम। सर खान ही अब है। ये खान ही है, आप चलें बस ये। तो ये एक अब ये सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट होगा हमारा जब मैं एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन एंड पे वो सारी कार्रवाई करके हम ये कर रहे हैं कि कनेक्शन डॉट इंसर्ट लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड आईडी, ये भी हम फेच कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कि जी जो आखिरी रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो उसकी आईडी क्या है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। पहले जाएंगे डीबग मोड में, लॉन्च किया मैंने, ये मेरा कनेक्शन यहाँ आके रुका है, एसक्यूएल मेरी तैयार है, सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट होने के लिए तैयार है, बल्कि एग्जीक्यूट भी हो चुका है। तो रिकॉर्ड एक आ चुका होगा ऑलरेडी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लास्ट आईडी में कुछ आ जाना चाहिए। तो लास्ट आईडी में आ गया 2, क्योंकि लास्ट जो रिकॉर्ड था वो क्या था, सेकंड रिकॉर्ड ऐड किया, तो उसका नंबर 2 होगा। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ पेज पे। सो ये लिखा हुआ है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड आईडी इज 2। अब देखते हैं कि दूसरा रिकॉर्ड आ गया है कि नहीं आ गया। ये सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और इसकी आईडी क्या है, ये वाली आईडी पिक कर रहा है ये 2। हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, हम 3 वैल्यूज इंसर्ट करने लगे हैं, ऑलरेडी 2 इंसर्ट की हुई हैं, 3 करने लगे हैं। तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम एसक्यूएल हम स्ट्रेट अवे भी ये कमांड लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट के आगे पूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट डाल सकते हैं, बजाय इसके कि पहले वेरिएबल क्रिएट करें हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड की कोड देखें आप, ये कनेक्शन पहले हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन, और उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को, अच्छा मल्टीपल रिकॉर्ड डालने हो एक ही वक्त में, तो फिर हम ट्रांजैक्शंस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होगा ये कि या तो तीनों रिकॉर्ड डलेंगे या एक भी नहीं डलेगा। ट्रांजैक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम कमिट कर देंगे तो ये ट्रांजैक्शन इसमें चली जाएंगी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 रिकॉर्ड्स की हमने एक ट्रांजैक्शन बनाई है, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और फिर हम ट्रांजैक्शन क्लोज कर देंगे कमिट के साथ। तो ये इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये ब्रेक पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो ये तीनों एग्जीक्यूट कर दिए हैं। अब कमिट करेंगे तो ये इंसर्ट होंगी, एग्जीक्यूट हो गई हैं। न्यू रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब अगर हम देखेंगे टेबल को तो इसमें हमें 5 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 रिकॉर्ड हमें नज़र आ गए। ये हमने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। Okay, there is an interesting feature in MySQL. It is called prepared. Prepared statement is very useful against SQL injections. SQL injection is one of the hacking technique through which you can insert
डेटा, कोई भी एसक्यूएल आप कुछ भी डेटाबेसेस भी पूरा टेबल डेटाबेसेस उड़ा सकते हैं आप एसक्यूएल इंजेक्शन से। अब लिखें जी ड्रॉप डेटाबेस फलां और उसको यूआरएल के थ्रू भिजवा दे हैकर, तो पूरी डेटाबेस उड़ जाएगी। इसलिए एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो यूआरएल के जरिए की जाती है, थ्रू यूआरएल हम पास करते हैं जो हैकर होते हैं। सर तो हैकर को सर इसलिए टेबल नेम कैसे बताओ? वो बल कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे शो टेबल्स किया था फॉर एग्जांपल, हमने शो डेटाबेस किया था ना, शो टेबल्स भी किया था, तो वो भी तो एसक्यूएल स्टेटमेंट ही है ना। तो वो ये कर सकते हैं कि पहले डेटाबेस शो टेबल या शो डेटाबेस करके वो पहले डेटाबेसेस के नाम पिक कर ले के कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं इसके अंदर, उसके बाद फिर वो एसक्यूएल स्टेटमेंट इंसर्ट कर सकता है। तो बहरहाल ये एक बड़ी स्टैंडर्ड टेक्निक है। इस टेक्निक को कैसे मैनेज करना है उसके लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या होता है, a prepared statement is a feature used to execute same or similar SQL statements repeatedly with high efficiency. Prepared statement basically work like this. First of all, prepare. An SQL statement template is created and sent to the database. Certain values are left unspecified, called parameters. तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। Example, insert into my guess values question mark question mark question mark. The database parses, compiles and performs query optimization on SQL statement template. The stores result without executing it. अच्छा, ये सिर्फ स्टोर कर लेगा एक SQL स्टेटमेंट को। अब एग्जीक्यूट जब हम चाहेंगे उसको करेंगे। एग्जीक्यूट में हम ये करेंगे, एट लेटर टाइम द एप्लीकेशन बाइंड्स द वैल्यूज टू द पैरामीटर्स एंड डेटाबेस एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट। द एप्लीकेशन मे एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एज मेनी टाइम्स एज इट वांट्स विद डिफरेंट वैल्यूज। और compared to executing SQL statements directly, prepared statement have three main advantages. पहली प्रिपेयर की एडवांटेज क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिड्यूस पार्सिंग टाइम एज प्रिपरेशन ऑन क्यूरी इज डन ओनली वंस। क्यूरी एक दफ़ा बना के रख लेते हैं टेम्पलेट, फिर उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। सेकेंडली, बाउंड पैरामीटर्स मिनिमाइज बैंडविड्थ टू द सर्वर एज यू नीड्स send only parameters. Third, prepare statement are very useful against SQL injections because parameter values which are transmitted later using a different protocol need not be correctly escaped. बहरहाल इसको SQL injection को अवॉइड कर सकते हैं हम। अच्छा, इसका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स भी मैं देखता हूँ, अगर मुझे मैंने डाला हुआ कोड यानी हाँ, ये कोड नहीं डाला हुआ मैंने, इसको ये स्टेटमेंट यार क्या करूँ। अच्छा, ये पहले हमने पीडीओ का ऑब्जेक्ट बना के कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया पहली दो लाइंस में। अब यहाँ पे प्रिपेयर एसक्यूएल एंड बाइंड स्टेटमेंट, तो हम लिख रहे हैं कनेक्शन डॉट प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में हमने ये पूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने वैल्यूज़ में कॉलन फर्स्ट नेम, कॉलन लास्ट नेम, कॉलन ईमेल लिख दिया है। ये कॉलम नेम आ गए पहले,
फिर वैल्यूज़ में हमने एक्चुअली वैल्यूज़ डालनी थी, लेकिन हमने वैल्यूज़ डालने के बजाय हमने इससे लिख दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद हम बाइंडिंग कर रहे हैं। स्टेटमेंट बाइंड पैरामीटर, फर्स्ट नेम को बाइंड किया हमने फर्स्ट नेम वेरिएबल के साथ, लास्ट नेम पैरामीटर को बाइंड किया हमने लास्ट नेम वेरिएबल के साथ, और ईमेल को हमने पैरामीटर को बाइंड किया हमने ईमेल के साथ। और इसके बाद हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू इंसर्ट अ रो, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल तैयार किए। फर्स्ट नेम पहले दफ़ा मैंने फर्स्ट नेम में डाला जॉन, लास्ट नेम में डाला डो, ईमेल डाली। उसको मैं आई जस्ट राइट, आई से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो जो ये वेरिएबल पड़े हुए हैं ये इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि बाइंडिंग हुई हुई है, तो स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूट हो जाएगी और डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो पकड़ी, फिर मैंने वेरिएबल्स के नाम फिल किए और एग्जीक्यूट कॉल कर ली। थर्ड मैंने फिर वेरिएबल्स को फिल किया और एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी यूज अ प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, सेलेक्ट, अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करने हो तो वो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, select statement. Select statement is used to select data from one or more tables. Select column name from table name. For example, हम कहते हैं select static from table name. तो static क्या करता है, static का मतलब है कि select all columns, तो जितने कॉलम होंगे उसके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये कमांड कंसोल है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये टर्मिनल में, फॉर एग्जांपल जाता हूँ मैं, select star from, पहले मुझे डेटाबेस यूज करनी पड़ेगी, यूज माई, क्या नाम है डेटाबेस का मेरा, माई डीबी पीडीओ, डीबी पीडीओ। डेटाबेस चेंज हो गई। अब मैंने इसमें टेबल यूज करना है, सिलेक्ट, यही जो टेबल ऊपर नजर आ रहा है इसको मैं अभी फेच करता हूँ कमांड लाइन पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का क्या नाम रखा था हमने, माई गेस। गैस डाला है, क्वेश्चन डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक। I guess. So as you can see, we have been able to fetch ID, first name, last name, email, पूरा डेटा मैंने टेबल फैच कर लिया विद दिस स्टेटमेंट, select स्टार फ्रॉम माई गैस। मैं कोई एक और अगर मैंने सारा पूरी डेटाबेस पूरा टेबल नहीं फैच करना तो फिर मैं नाम दूंगा साथ साथ। select first name, comma, last name from my guess। तो स्टैरिक को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कॉलम नेम से। स्पेलिंग में देख लूँ गलत तो नहीं टाइप कर दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माय गेस, सीम्स ओके।
तो ये अब सिर्फ 2 कॉलम उसने फेच कर लिए हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन डेटाबेसेस। इसको हम ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया है। अब अगर हमने प्रोग्रामेटिकली काम करना है तो अगेन select data with PDO with prepared statement। तो इसको the following example uses prepared statement. It selects ID, first name, last name column from my guest table and display it in HTML table। इसको मेरा ख्याल है मैंने इसको डेमो में नहीं डाला हुआ। select with PDO हाँ है। ओके, तो ये मैं आपको पीडीओ के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पीडीओ वाला डेटा है। Select following example uses prepared statement. It selects ID, first name, last name। ये एक टेबल बना रहा है डेटाबेस से, HTML टेबल। तो इसमें एक हमने एक क्लास क्रिएट की है। ये बहरहाल ये स्टैंडर्ड कोड है, इसको आपने जो इंटेलेक्चुअल आपकी वो वर्किंग आती है वो यहाँ पे आएगी कि आपने SQL स्टेटमेंट कौन सी लगानी है आपने। ये फॉर एग्जांपल SQL स्टेटमेंट है सेलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम द गेस्ट। ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद एक टेबल क्रिएट हो रहा है, HTML टेबल क्रिएट हो रहा है। वो टेबल क्रिएट करने का पूरा कोड है इसके अंदर। तो वो जो ये फॉर ईच लूप में हमने ये बेसिकली जो आ रहा है स्टाइल विड्थ, फिर ये रो क्रिएट कर रहे हैं हम, रो क्लोज कर रहे हैं, रो शुरू कर रहे हैं। तो ये टेबल्स वगैरह जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट यूज़ करके हमने टेबल बना लिया। तो प्रिपेयर कैसे हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने जो हमारी SQL स्टेटमेंट है वो किधर है, ये स्टेटमेंट है। सेलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम गेस्ट। ये हमने प्रिपेयर के साथ कनेक्शन डॉट प्रिपेयर किया है और फिर प्रिपेयर सेपरेट है और एग्जीक्यूट सेपरेट है। ये क्योंकि फिक्स है, इसमें कोई हमने डेटा वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए उसमें हमने वो बाइंडिंग वगैरह नहीं की हुई, क्योंकि स्ट्रेट अवे हमने फिक्स कॉलम है जो हमने उठा लिए हैं। अगर वेरिएबल के तौर पे हमने पास करने होते ये कॉलम्स, फिर हमें वो एग्जीक्यूट से पहले वो स्टेटमेंट थोड़ी सी तैयार करनी पड़नी थी। तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ एक कोड है। ओके, तो तकरीबन मैंने आपको काफ़ी सारी एक्सपोजर दे दिया है, डेमो भी दे दिए हैं और कुछ इसमें से रह गई हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने देखना है इसको खुद। वेयर क्लॉज, मैं मोटा मोटा से बताता हूँ। वेयर क्लॉज जो होती है ये आपका हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग कर रही होती है। हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इसको एग्जीक्यूट कर लें ज़रा। स्टेटमेंट हमारी ये है कि सेलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम माय गेस्ट। अगर मैं ये लिखता वेयर वाली क्लॉज, तो पूरे का पूरा टेबल मेरा रिटर्न होता 3 कॉलम्स। ये 3 कॉलम कंप्लीट रिटर्न होते, डेटा पे फिल्टर ना लगता।
लेकिन डेटा पे फिल्टर लगाने के लिए मैंने वेयर क्लॉज यूज़ किया है। मैं कह रहा हूँ जी सिर्फ वो वाले कॉलम डेटा रिटर्न करो, 3 कॉलम का डेटा सिर्फ वो वाला रिटर्न करो जिसमें लास्ट नेम डो है। तो एक ही यूज़र है हमारा जिसका लास्ट नेम डो है, इसलिए ये वो ये एक ही लाइन रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग जब हम डेटा में फिल्टरिंग करनी हो तो फिर हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। अगर हमने कॉलम्स में फिल्टरिंग करनी हो तो फिर सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, क्योंकि सेलेक्ट से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से कॉलम चाहिए। वेयर से आप कोई क्राइटेरिया लगा के अपना डेटा अपना आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा डेटा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो ये वेयर क्लास का कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर बाई इज यूज फॉर सॉर्टिंग योर डेटा। डेटा को सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाई की कमांड यूज होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ऑर्डर बाई लास्ट नेम, तो लास्ट नेम की बेस पर सॉर्टिंग हो जाएगी। इसकी लास्ट नेम मतलब है जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ए ऊपर होगा, जेड सबसे नीचे होगा। फिर आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इसकी अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिलीट फ्रॉम माय गेस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, तो जो आईडी 3 होगी उसको डिलीट कर रहे हैं, सब पूरा टेबल नहीं डिलीट कर रहे, आईडी 3 वाला रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है डिलीट फ्रॉम माय गेस्ट टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। इसी तरह आप डाटा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने को, एग्जिस्टिंग डाटा का चेंज करने को हम अपडेट कहते हैं, अपडेट। तो अपडेट का जो सिंटैक्स है वो ये सिंटैक्स है, अपडेट माई गेस्ट टेबल, और उसके बाद हम लिखते हैं सेट लास्ट नेम डो वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो मतलब ये होगा कि जो आईडी 2 वाला रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में लास्ट नेम को आप रिप्लेस कर दें डो के साथ, यानी कि आपने रिकॉर्ड चेंज कर दिया, डेटा चेंज कर दिया। ठीक हो गया जी। तो बस ये दिस ऑल वाज एक्सपोजर ऑफ डेटाबेस। माय जो पीएचपी है, पीएचपी में बेसिकली आपको फॉर्म्स चीज़, फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्म से आप बेसिकली डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं टेबल्स में। तो एक जनरल आपको आइडिया मैंने दिया टेबल्स का कि टेबल्स से कैसे हम डिफरेंट कमांड्स देते हैं पीएचपी के ज़रिए। सो इट क्लोजेस आर टुडेज लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर, बाकी सब भाग गए हैं। आज लगता है एब्सेंट ही लगनी है इन सब की। हाँ जी, अब अबशार। Yes, sir. No questions. Yes sir, no questions. चलें ठीक है, थैंक यू। अब मैं एक आपको छोटा सा दूंगा असाइनमेंट सी, ताकि थोड़ा सा आप ये इंस्टॉलेशन वगैरह सीख लें, कोई एक आधा कोई चीज़ एग्जीक्यूट करके देख लें, डीबग मोड में इसको यूज़ करना सीख लें। आपको इस चीज़ का आइडिया हो तो दैट वुड सफाइस फॉर यू कि आपको एक एक्सपोजर मिल जाए उसका। ठीक है जी, तो असाइनमेंट विल बी आई प्रिपेयर एंड अपलोड।